Hello everyone, welcome back to my channel. It's been a while since I've uploaded any videos. And myself, Dr. Harsh DMC, I have graduated from O State University and I have cleared my MCI exam at my first attempt and I scored 180 marks. So despite being an average student, how I cleared my MCI exam. So in this video, I'm going to share you some of my ideas, my strategy. So I hope this video will be helpful for you. So let's get started. सो आई हैव बीन गेटिंग सो मैनी DMs, काफ़ी सारे मेरे को मैसेजेस वगैरह आ रहे थे। तो उसमें मेनली जो भी आप लोगों की क्वेरीज है, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, उन सभी के वन बाय वन मैं आपको आंसर दूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लाइक विच सब्जेक्ट यू शुड स्टडी फर्स्ट वाइल यू आर इन ओस और योर रिस्पेक्टेड यूनिवर्सिटी। So I would like to tell you, either there is like two choice. Either you should finish all the major subject or all the minor subjects. So you already know all the major subject: PSM, medicine, surgery, obs gynae, and pharma you can also add. So you should finish these subject while you are in OS or your any other university, it doesn't matter. Or either you can leave all these subject totally, do not study this subject, you can just focus on all the remaining subject. So what I did, it was I completed all my major subject except for surgery. I did my like PSM, medicine, and obs gynae and pharma, and as well as pathology I did when I was in OS. And remaining all the subject, when I came to Gautam Nagar, Delhi, I did it over there. And everyone is keep talking about the subject only, but the main reason जो जिसकी वजह से मैं पास हो पाया, वो कहीं ना कहीं जो है सारे टॉपिक्स थे इम्पॉर्टेंट. सो आई एम गोइंग टू शेयर द इम्पॉर्टेंट लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स. सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, and these are some important topics as you can see on the screen. Take a screenshot and make sure to at least read these topics. So please make sure to study this topic. You will get sure short question from these topics, at least 50 to 70 question. It will be very helpful for you. And what else regarding institute and coaching, I will upload a different video, so you can watch that later. And but you already following Mero or Plea-Prodder or whatever teacher you are following, but here are some name of teachers as you can see on the screen. I would like to suggest these teacher for individual subjects. If you're not planning to join any coaching classes or anything like that, when they taught me, my concept was very clear, and they taught in a good manner, it was very good. सो आप जिस भी कोचिंग क्लासेस में आप रहो, जैसे आप लोगों का कोर्स ख़त्म हो जाएगा तो लास्ट मोमेंट पे व्हाट यू शुड डू इज़ कि अपने जो स्टडी नोट्स हैं उस पर बस आप चिप के रहिए. अपने स्टडी नोट्स जो भी हैं, जो भी आपने अपने सेल्फ नोट बनाए हैं, उसको बार बार उसी को रिवीजन कंटिन्यूसली बस पन्ने पलट के देखते जाइए. ऐसा नहीं कि आपको एकदम हार्ड कोर स्टडी करने के लगातार ABCD ऐसा करके नहीं, बस पन्ने पलटिए और देखते जाइए. देखते देखते फोटोग्राफिक मेमोरी बनती है. सो फोटोग्राफिक मेमोरी इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बिलीव मी, अगर आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी, लेकिन आप अपने नोट्स को काफ़ी बार आप देख चुके रहते हैं, रिवीजन कर चुके रहते हैं, तो आपको याद रहता है ये चीज़ें मैंने यहाँ पे कॉर्नर पे लिखी हुई थी या कुछ ऐसा था. सो दैट वाज वेरी बेनिफिशियल फॉर मी. एंड एग्ज़ाम के 15-20 दिन पहले आपका काफ़ी सारे रैपिड रिवीजन की क्लासेस होंगी. सो फ्रॉम रिस्पेक्टिव लाइक डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट, देयर विल बी सम प्रमोशनल क्लासेस. सो देयर यू कैन गो एंड ईच सेशन विल बी around 3 to 4 hours for 3 to 4 days. So for per session, like you can get 5 to 7 question. At last moment I went to some rapid revision and promotional classes, so I attended that class for 3 to 4 days, and from that classes only I got around 20 to 25 questions only. So that was also very much helpful. And about grand test and MCQs. सो टू बी ऑनेस्ट, जब मैं पढ़ाई करता था तो ऐसा होता था, मैं क्वेश्चंस कम सॉल्व करता था. शुरू में टेलीग्राम पे या प्ले-प्रोडर पे या मैरो पे मैं कम ही क्वेश्चन सॉल्व करता था. मतलब जितना जैसे आपको कोचिंग में बोलते हैं या जो भी आपके पहले जो सीनियर रहे होंगे वो भी बोलते होंगे 100 MCQ सॉल्व कीजिए, ये कीजिए,
बट जब हमारी कोचिंग क्लासेस जब चलती रहेगी तो सीन ये होगा कि थोड़ी दिन आप क्या कर पाएंगे कि आप कर पाएंगे 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन धीरे धीरे हो क्या सब वो कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते। सेम मैं भी नहीं बना पाया। सो आई वॉजंट एबल टू सॉल्व like 100 or 200 MCQs on daily basis. So my main focus was grand test GT. I have given around 16 grand test from pre-bladder as well as marrow also, and some other sources, but majority was from them marrow and pre-bladder. In pre-bladder my maximum score was 136. I wasn't able to get more than 136 from pre-bladder, but when I started giving marrow, so usually I was getting around 170 185, and my highest mark was 198 on marrow. As you can see, this is screenshots. So these were like used to be my marks, and exactly I got 180 marks what I was getting in grand test. So grand test in marrow, it was like very beneficial for me. It was very beneficial, really. The questions were like moderate difficulty, not that much easy, not that much hard, but it was quite useful. And from pre-bladder, if you want to make an orientation and improve yourself in a certain type of questions, then you should solve pre-bladder question. And from the pre-bladder GT, if you're getting around 130, believe me, that is enough. If you're getting more than that, that is also like very good, but if you're around 130 135 140, that is more than enough. Yeah. So that was all about grand test. बट ग्रैंड टेस्ट देने से सिर्फ ये फ़ायदा नहीं होता कि आपको अपने नंबर का एस्टिमेट पता चलता है, आपको खुद की अपने औकात पता चलती है कि आप कितने पानी में हैं, बट सबसे बड़ा जो मेरे लिए ग्रैंड टेस्ट देने का फ़ायदा ये था कि मेरी आदत बन चुकी थी। मैं इतने ज़्यादा ग्रैंड टेस्ट दे चुका था 16-17, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं एक बार में 3 घंटे अपने जगह पे बैठता था। मैं 3 घंटा बैठता था और आराम से मेरी आदत सी हो चुकी थी। तो सेम चीज़ आपको क्या है, एग्ज़ाम में भी ये चीज़ होगा कि आप बार बार ग्रैंड टेस्ट देंगे तो आप मतलब जो एक होता है ना प्रेशर हैंडल करने की जो ताकत रहती है वो कैपेसिटी आप में आ जाएगी। क्योंकि एग्ज़ाम से 10 पहले आप लोग को सभी लोग को बोलते हैं कि आप अच्छे से सो के जाइए, बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, मेरे पास मतलब मेरे को इतना ज़्यादा कोई टेंशन नहीं था कि हल्की फुल्की बस टेंशन थी, बट फिर भी मुझे रात भर नींद नहीं आया और वहाँ मैं बिना सो गया था एग्ज़ाम में। और उसके बावजूद भी ऐसा था कि मैंने पास्ट में इतने सारे ग्रैंड टेस्ट दिए थे कि मुझे वैसा बैठने का और पूरा वो करने का मेरे में हैबिट था, तो जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहा मेरे लिए। सो अपना खुद का एक ओरिएंटेशन बिल्ड होता है उससे। तो ग्रैंड टेस्ट से सिर्फ ना कि आपका नंबर का एस्टिमेट होता है, बल्कि ओवरऑल आपका जो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स होता है वो आपका काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगा। बिलीव मी और नॉट, जब मैंने दोनों पेपर दिए, फर्स्ट और सेकंड पेपर, सो अराउंड 40 से 45 मिनट मेरे में एक्स्ट्रा बचा था मेरे पास। मैं ऑलरेडी लगभग 1.5 घंटे से थोड़ा ज़्यादा में मैं अपने दोनों पेपर कंप्लीट कर चुका था। फिर उसके बाद आराम से मेरे पास 40 से 45 मिनट बचे थे, जिससे मैंने वापस वो किया। सो दैट वाज ऑल अबाउट ग्रैंड टेस्ट। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जो कैलकुलेशन, एंड NBA जो है वो मार्क्स काटता है कि नहीं काटता है। सो आई बीन गेटिंग लाइक bunch ऑफ DM रिगार्डिंग दिस ओनली कि क्या NBA ने आपके मार्क्स काटे या नहीं काटे, या उसमें कोई चेंजेस थे कि नहीं थे। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने एग्ज़ाम दे के आया, मैंने क्या किया, क्वेश्चन मैंने रिकॉल वीडियो देखना चालू कर दिया। मतलब काफ़ी सारे जो फैकल्टी थे प्रे-ब्लाडर के, मैरो, अनअकैडमी, जो भी इंडिविजुअल थे, वो सभी में मतलब अपना रिकॉल का क्वेश्चन आना वहाँ पे चालू हो जाता है। सो आई वुड हाईली सजेस्ट यू कि आप रिकॉल वीडियो ज़रूर देखिए और अपने मार्क्स जो है उसको ज़रूर कैलकुलेट कीजिए। और इफ़ यू आर हैविंग एनी स्लाइटेस्ट डाउट इन अ सिंगल क्वेश्चन कि नहीं यार ये क्वेश्चन जो था मेरा अच्छा नहीं गया, या इसमें डाउट है कि सही होगा नहीं, उसका काउंट मत कीजिए। तो उसको क्या है, आपको श्योर शॉट आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। जैसे कि मैंने अपना मार्क्स ऐसे करके कैलकुलेट करके रखा था, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। सो दीज वर माई मार्क्स। सो अराउंड 240 में मेरे को 140 आ रहे थे। आई वॉज गेटिंग अराउंड 140 मार्क्स। सो उसमें मैंने और 10 मार्क्स मैंने कम कर दिए। सो मैंने सोचा कि 240 में मैं 130 के आसपास मेरे आ रहे थे, 130 नंबर मेरे बन रहे थे। सो रिगार्डिंग जो 60 क्वेश्चन जो और जो बचे थे, रिमेनिंग 60 क्वेश्चन, उसमें मेरे को तो एटलीस्ट इतना तो था ही कि मेरे को 50% उसमें मार्क्स मेरे सही हो ही जाएंगे। सो आई विल गेट अराउंड 170 165, बट फाइनल जब मेरा मार्क्स आया, रिजल्ट आया, सो 180 मिला।
सेम ऐसा ही मेरे कुछ दोस्तों के साथ हुआ, उन्होंने भी अपना एक एस्टीमेट कैलकुलेट किया था, सो उनको भी कुछ ऐसा ही मिला सेम टू सेम। सो मेरे हिसाब से तो एनबीए वालों ने मेरा मार्क्स नहीं काटा, मेरे कुछ फ्रेंड के हिसाब से भी मार्क्स जो हैं वो किसी के नहीं कटे। सो अनफॉर्चुनेटली सम ऑफ माई फ्रेंड दे गॉट 147 दिस टाइम, and last time also they also got like 147 148 like same marks. So I'm not sure that one, I will leave it up to you कि आपको मतलब आपको पर्सनली क्या लगता है, मेरे कमेंट में बताइए कि वो क्या मार्क्स काटते हैं कि नहीं काटते। बट अनफॉर्चुनेटली उनके साथ तो ऐसा करके हुआ कि उनको लगा कि नहीं, उन्होंने मतलब थोड़ी पार्शलिटी की है और जो भी धोखाधड़ी या जो भी बोलना चाहिए। बट मेरे हिसाब से तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और काफ़ी सारे जो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किए या जिनका सेकंड अटेम्प्ट था उनके हिसाब से भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट काफ़ी लोगों का भी कहना था कि नहीं, उसमें जो है 3-5 धांधली चलती है और कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। सो वो चीज़ें मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग योर मार्क्स, सो जैसा अगर आपको लगता है कि आप पास हो जाएंगे और आप अपने श्योर शॉट हैं कि आप कितने क्वेश्चन लगभग सही हो रहे हैं, तब तो आप निश्चिंत रहिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार आप पास नहीं होने वाले, सो मेरा सजेशन ये रहेगा कि टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना है। भले एकदम ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बट बुक नहीं छोड़ना है। बुक, कॉपी किताब जो भी है आपका नोट्स है उसको आपको पढ़ना नहीं छोड़ना है। अगर आप पढ़ाई को एक दिन छोड़ेंगे, पढ़ाई आपको 7 दिन पीछे छोड़ेगा। ये एकदम फैक्ट बात है, मेरे टीचर ने कही थी, वो बात एकदम फैक्ट है। तो अगर आप ऐसा मत करना है कि अगर आपको लगता है कि नहीं सही नहीं होने वाला है और पास नहीं हो रहे हैं, तो टाइम वेस्ट ना करने का बजाय वो चिल फील करने के लिए 2-3 दिन काफ़ी है। उसके बाद फिर वापस अपना लग जाए उसमें करके। सो दिस वर ऑल द क्वायरीज। ये मैंने काफ़ी चीज़ें इसमें कवर करी थी, जो भी सब्जेक्ट कैसे आपको पढ़ना है, मेजर पढ़ना है कि वो पढ़ना है, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था जो भी ऑल टॉपिक्स जो हैं वो तो मैंने दे ही दिया। टीचर भी मैंने आपको बता ही दिया कि ये टीचर मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, उनका उस सब्जेक्ट में काफ़ी कमांड है। लेकिन अदरवाइज़ अगर आपको ये टीचर अगर ना जाए, इफ़ यू नॉट कंफर्टेबल विद देयर टीचिंग स्टाइल, सो जस्ट स्टिक टू योर ऑन टीचर, और जिससे आपने पढ़ा है आप उन्हीं से पढ़िए। और लास्ट मोमेंट में क्या करना है वो तो मैं आपको बता ही दिया हूँ कि अपने नोट पे बस टिके रहना है, सोर्स चेंज नहीं करना है। लेकिन अगर कहीं भी अगर वो प्रमोशनल वाला अगर कुछ भी अगर ऐसा होता है तो वहाँ जाओ, बिल्कुल क्लास अटेंड करो, काफ़ी यूज़फुल रहता है एटलीस्ट मेरे लिए। और ग्रैंड टेस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा एकदम इम्पॉर्टेंट है, और एग्ज़ाम देने के बाद आपको कैलकुलेशन करना नहीं भूलना है। और उसके अलावा और तो बोनस पॉइंट मैं क्या ही दूँ कि जब आप कभी कभी जब पढ़ाई से बोर हो जाओ ना, तो चिल ज़रूर करो, और जहाँ कहीं भी अगर आपको घूमने वूमने जाने का मन है वो सब भी करते रहना। और इनफैक्ट आप सभी तो मेरे जानते थे उसमें मेरा क्या सीन था, सेम चीज़ मेरे दिल में भी था। अगर बोर होने लगा, कहीं भी कोचिंग वोचिंग में प्रोग्राम हो रहे हैं, डांस वांस हो रहा है, मैं वहाँ भी चला जाता था। वहाँ भी मैं काफ़ी नाच वाच के आया, मज़ा आया। और अंत में सभी चीज़ें जो है और वर्थ रही। और अगर आप एकदम बोर हो जाते हैं, नोट्स अगर आपको नहीं पढ़ पाते, तो सबसे बेस्ट तरीका है कोई भी PYQ, नीट PG हो, INICT हो, FMG हो, जो मन में आया खोल लो, उसको बस वीडियो को करके लगातार देखते रहो, तो कुछ ना कुछ चीज़ें याद होती हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से लास्ट में आपको ये बोलना चाहूँगा कि लास्ट के टाइम पे आपको कोई सा भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ना है। भले उसका लास्ट में रैपिड रिवीजन ही देख लेना, और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है तो आपको समझ आ जाता है। लेकिन सबसे जो मेन मेरा पॉइंट ये है कि जो आता है वो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। जिस टॉपिक से, जिस सब्जेक्ट में आपकी अच्छी कमांड है, उसमें से क्वेश्चन नहीं गलत होने चाहिए। वो चीज़ मैंने लास्ट टाइम स्ट्रेटजी अपनाई थी। और मेरी जैसे गलती मत करना, मैंने सर्जरी छोड़ के गया था, बिल्कुल भी मतलब सब्जेक्ट किताब मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, लेकिन लास्ट में जाते थे मैंने रोहन खंडेलवाल सर की 1-2 रैपिड रिवीजन जो लास्ट में मैंने देखा, PYQ देख लिया, उतना ही मोर देन इनफ था मेरे लिए, लकली मोर देन इनफ था। अदरवाइज आप ये गलती ना करें, मेजर सब्जेक्ट में मैंने काफ़ी बड़ा रिस्क लिया था। बट डिस्पाइट अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने मतलब पास कर लिया, थैंक टू ऑलमाइटी, भगवान की कृपा थी, गणेश जी की। और सबसे बोनस पॉइंट जाते हैं मैं यही देना चाहूँगा, अपना आपको पैसा नहीं छोड़ना है, जो करते हैं वो आपको करते रहना है। 6 साल आपने क्या किया ये नहीं पूछेगा, जो मेहनत है वो मेन आपको 6 महीने की रहती है। 6 महीने में आपने जो मेहनत किया, रिजल्ट अच्छा आएगा और सब चीज़ होगा। सो थैंक यू वेरी मच। और अभी अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को DM कर सकते हैं व्हाट्सएप में, इंस्टा में, कहीं पे भी, और आपको मैं बता दूँगा। थैंक यू वेरी मच।